We welcome you, dear viewers of the educators, in our new video, new lecture on the same series of monetary policy with a new instrument, a new method that is known as selective credit control method. अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे that was related to quantitative methods, and now we are here with the qualitative or the selective measures that are used in the process of credit control. So what is the difference between the general methods and the selective methods? As the name indicates, in the case of general methods where we were discussing about bank rate, open market operations, variable reserve ratios in which repo rate and reverse repo rate were included, they were encompassing the whole economy. Means every sector in the economy was being targeted by those methods. But in reality, every sector is not needed to be controlled in the case of credit. क्योंकि जब हम बात करेंगे हम ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी सेक्टर्स होंगे जहाँ पे क्रेडिट को रोकने की ज़रूरत नहीं बल्कि क्रेडिट को बढ़ाने की ज़रूरत है. कई ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनको हमें ज़्यादा फोकस करना होगा क्रेडिट कंट्रोल को लेके. कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें क्रेडिट को बढ़ाना होगा उन सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए. तो जनरल जब हम कोई रूल लगाते हैं तो वो पूरी इकोनॉमी को क्योंकि एक साथ अपने अंदर इनकम पास करता है तो वो मेथड और वो रूल हर जगह अप्लाई हो जाते हैं जो कि जहाँ नहीं होना चाहिए थे वहाँ भी. तो सेलेक्टिव मेथड्स में हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपने टूल को, वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है. मीन्स हिटिंग द एरो एट द पॉइंट वेयर इट इज़ नीडेड मोस्ट. हम हर पॉइंट को एक साथ टारगेट नहीं करेंगे. जनरल मेथड में हर पॉइंट को एक साथ टारगेट करते हैं, बट सेलेक्टिव मेथड में सिर्फ उस पॉइंट को टारगेट किया जाता है विच इज नीडेड द मोस्ट. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम we will move towards the methods. The first selective measure is marginal requirement. What is marginal requirement of the loan? The first question is, what is marginal requirement of the loan? Margin is the difference between the loan value and the market value of the securities being offered by the borrower against the secured loan. मतलब एक borrower आया हमारे पास, उसने जो सिक्योरिटी दी उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 40 लाख है और वो लोन जो डिमांड कर रहा है वो लोन जो भी है अब हमें ही डिसाइड करना है, बैंक को डिसाइड करना है कि हम कितना लोन दें. तो जितना डिफरेंस आता है लोन वैल्यू और सिक्योरिटी वैल्यू पे वो आता है आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल लोन की वैल्यू है, हमने डिसाइड की कि हम लोन देंगे 10 lakh, मीन्स 1/4 हम मार्जिन रख रहे हैं. Here 1/4 is equals to the margin. इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर हम समझें कि अगर 1 लाख रुपए का लोन है, देयर इज अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज एंड द सिक्योरिटी, हम ये 1 लाख का लोन किस पे दे रहे हैं, सिक्योरिटी हम इसमें ले रहे हैं. अब ये हमने अगर सिक्योरिटी दी जा रही है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की, तो हम उस पर लोन दे रहे हैं जस्ट 40,000 का. दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 60,000 रुपीज एंड दिस डिफरेंस ऑफ 60,000 इज नोन एज द मार्जिन ऑफ लोन. एंड एज यू वांट टू डिक्रीज द लोन, इफ द सेंट्रल बैंक डिसाइड्स टू डिक्रीज द लोन, अगर एम आता है ये लोनिंग को कम करना है, so in order to decrease the loan, banks raise their margin to decrease the loan. Now, what will happen if the margin of the loan has been increased? Now, again, if the security has been offered for 1 lakh rupees, now earlier the margin was 60%. Now, if the margin has been raised to, say for example, 70%. So now, after keeping this marginal requirement of 70%, that is 70,000 rupees, bank will only grant the loan of 30,000 rupees. Earlier, this loan was of 40,000 rupees. Now this loan has been decreased to 30,000 rupees. So whenever the marginal requirement of the loan has been increased by the central bank, the loan
will decrease and hence inflation can be controlled by increasing the marginal requirement for the loan. Moving towards the second tool, that is regulation of consumer credit. So whenever we are talking about the consumer credit means हम जब भी एज अ कंज्यूमर मार्केट में जाते हैं तो कभी कभी हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम वो पूरी चीज़ ले सकें जिसकी हम लेना चाह रहे हैं. तो अक्सर होता है कि बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हमें लोन ऑफर करते हैं दैट यू कैन परचेज ऑन EMIs. EMI के लिए ज़रूरी होता है डाउन पेमेंट एंड आफ्टर द डाउन पेमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट्स. तो जितना भी ये डाउन पेमेंट कम होगा उतना ज़्यादा क्रेडिट बढ़ेगा, हम उतना ज़्यादा सामान खरीदना चाहेंगे क्योंकि हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि डाउन पेमेंट हमें कुछ देना नहीं, हम खाली आ जाएंगे, सामान लेके चले आएंगे. साथ ही साथ अगर मंथली इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ मोर नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइडेड है तो भी क्रेडिट इजी हो जाएगा. So now let's take an example. हम मार्केट में जाते हैं, आई एम प्लानिंग टू परचेज अ मोबाइल फोन फॉर मी. सो द कॉस्ट ऑफ दिस मोबाइल, द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल इज 50,000. हमको बैंक या नॉन बैंकिंग कंपनीज ऑफर करती हैं दैट यू हैव टू पे 0 DP. आपको सिर्फ आना है, मोबाइल लेना है, आपको कोई पैसा साथ में लेके नहीं आना. And you have to pay 1,000 rupees per month. 1,000 रुपये पर मंथ देना है. कितने महीने तक? 50 महीने तक, for 50 months. ये हमारे लिए बड़ा आसान है. 50 महीने तक हम हर महीने 1,000 रुपये देते रहेंगे. मेरे पास से एक बार में 50,000 रुपये का लोड मेरे ऊपर इनकर नहीं होगा, हम आसानी से ही पूरे 50,000 रुपये दे सकेंगे. तो यहाँ पे DP भी कम थी, इंस्टॉलमेंट्स भी कम थी और पीरियड ऑफ पेमेंट भी बहुत ज़्यादा था. तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पूरी तरह से एज अ कंज्यूमर सहूलत थी, आसानी थी दैट वी कैन परचेज दैट दिस मोबाइल वर्थ ₹50,000. बट इफ द सेंट्रल बैंक इज प्लानिंग टू कर्ब दिस टेंडेंसी, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? इट विल आस्क टू रेज द DP. Say for example, you have to pay 80% of the total value. तो 50,000 रुपये का हमें पहले 80% एज अ डाउन पेमेंट देना पड़ जाएगा. फिर वो कहेगा कि you have to increase your installment, increase the amount of installment. 1,000 रुपये से अमाउंट बढ़ाओ and the period of installment should also be decreased. अब क्या हुआ कि 50,000 का मोबाइल ले जाने में अगर हम कंपैरिजन करें दोनों साइड, अगर आप दोनों साइड कंपैरिजन करिए, इस साइड और इस साइड, तो खुद सोचिए कि आपको कौन सी चीज़ आसान लगी. 50,000 का मोबाइल आपको चाहिए है. पहले केस में इस साइड पे जब हम देखेंगे तो आपको डाउन पेमेंट कुछ नहीं करना है. यहाँ पे डाउन पेमेंट आपको 50,000 रुपये का 80% करना है. यहाँ पे दिक्कत. फिर यहाँ पे 1,000 रुपये महीना देना था, बड़ा आसान था मामला, और 50 महीने तक तो पता भी नहीं चलता. यहाँ पे हमने जब देखा तो सेंट्रल बैंक ने अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को भी बढ़ाया और पीरियड ऑफ पेमेंट को 50 महीने से कम कर दिया. तो दोनों सेंस में हमारे लिए दिक्कतें पैदा होना चाहिए. ये चीज़ एक साथ भी हो सकती है कि सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं कि डाउन पेमेंट बढ़ा दिया जाए, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बढ़ा दिया जाए, पीरियड कम कर दिया, या तीनों अलग अलग भी हो सकती हैं. तो लेकिन ये जो भी होगा दैट विल कर्ब द क्रेडिट. मार्केट में कंज्यूमर क्रेडिट विल फॉल. तो जो कंज्यूमर की एक्सेस डिमांड थी उसको कंट्रोल किया जा सकेगा एंड इन टर्न इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल बाय रेजिंग द डाउन पेमेंट, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पर मंथ एंड बाय डिक्रीजिंग द पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन इन द केस ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट. तो ये तो हमारे सामने सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के ये मेथड्स आए. इसके साथ साथ हम अगर इसको दूसरे मेथड्स को देखें, हमारे सामने 2 मेथड्स क्लियर हो गए. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड मेथड, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का थर्ड मेथड. दैट इज
डायरेक्टिव्स बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कुछ डायरेक्टिव्स देता है टू द कमर्शियल बैंक, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज डायरेक्टिव्स द central bank tries to curb the inflationary tendencies. These directives are issued to the commercial bank in order to release the following objectives. ये कौन कौन से objectives हैं? To control the lending policies. Lending policies को control करने के लिए जो resources हैं, जो financial resources हैं, उनको उन sectors पे deviate करने के लिए, divert करने के लिए जहाँ उस loan की ज़्यादा ज़रूरत है, और जिन जगह पे ज़रूरत कम है हमको उन जगह से पैसों को निकालना है, और किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक सर्टेन लिमिट को तय करना सेंट्रल बैंक चाहता है विद द हेल्प ऑफ दीज डायरेक्टिव्स। तो डायरेक्टिव्स भी काफ़ी हद तक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ, सेंट्रल बैंक ने ऑर्डर दिया कि फॉर एग्जांपल एनी सेक्टर एन सेक्टर से पैसा निकालना है, तो नाउ कमर्शियल बैंक कभी भी, अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक के लोन्स की, तो कमर्शियल बैंक एन सेक्टर को अब लोन नहीं देगा, या कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक ने कहा कि अब लोन जो है फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेक्टर को देना है, तो कमर्शियल बैंक अपना सारा रिसोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर को दे देगा। तो इस तरीके से डायरेक्टिव्स की मदद से हम पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन एरियाज में, जिन सेक्टर्स में लोन की इतनी ज़रूरत नहीं है या जहाँ से इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज अराइज होने का खतरा है, उन जगह पे हम उसको रोक सकते हैं। Then the fourth is rationing of the credit. ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, अक्सर हमारे आसपास ये बहुत ही कॉमन चीज़, राशन की दुकान हम लोग हिंदी में कहते हैं, राशन की दुकान, रेशन शॉप्स। रेशन का मतलब क्या होता है? रेशन ऑफ द क्रेडिट इम्प्लाइज टू थिंग्स। पहली, द सेंट्रल बैंक फिक्सेज अ लिमिट अपॉन द रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज फॉर एनी पर्टिकुलर बैंक, एंड सेकेंडली it means that the central bank fixes the quota for every affiliated bank for financial accommodation from the central bank. एक कोटा सेट कर देना या एक लिमिट सेट कर देना is known as rationing। ठीक है, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर बहुत ही लेमैन की लैंग्वेज में बात करके समझाऊं, तो यहाँ पे ये है कि सेंट्रल बैंक ने एक लिमिट लगा दी कमर्शियल बैंक के लिए कि आप फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को सिर्फ एग्रीकल्चर को ही लोन दे सकते हैं और किसी और सेक्टर को लोन नहीं दे सकते। तो अब अगर कोई और आएगा लोन लेने, मान ली दो तरह की रेशनिंग हो गई, एग्रीकल्चर एंड 10 करोड़, अगर कोई 12 करोड़ का लोन लेने आता है ही विल बी डिनाइड। एग्रीकल्चर के अलावा कोई और सेक्टर लोन लेने आता है, फॉर एग्जांपल रिटेल सेक्टर से कोई आता है, तो he will be denied। तो this is known as rationing। यहाँ पे भी हम इसको जब इस्तेमाल करते हैं इस मेथड को, तो हम अपने रिसोर्सेज का सही और प्रॉपर इस्तेमाल कर लेते हैं और उस जगह पे पैसे को लगाते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। देन आता है मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन का जो मेथड है, इसके बारे में अगर हम देखें, फिफ्थ मेथड इज मॉरल suasion. So what is moral suasion? This method involves advices, request and persuasion with the commercial bank to cooperate with the central bank in implementing the credit policy। यहाँ पे कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक किसी भी देश का वो सिर्फ एडवाइस करता है, परसुएट करता है और रिक्वेस्ट करता है कमर्शियल बैंक से कि उसकी जो भी पॉलिसीज़ हैं क्रेडिट कंट्रोल को लेके उनको पूरी तरह से एडर करे, पूरी तरह से उसका पालन करे, ताकि इकोनॉमी में एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो और जो फ्लक्चुएशंस हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस या इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटीज़ हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। तो अगर मॉरल सुएजन की हम बात करें तो मॉरल सुएजन बहुत सारे देशों में इस्तेमाल किया गया और काफ़ी हद तक ये कामयाब देखने को मिला। फिर इसके बाद आता है डायरेक्ट एक्शन। ये एक हार्श मेथड है बाय द सेंट्रल बैंक टुवर्ड्स द कमर्शियल बैंक्स इन एन इकोनॉमी। क्या है डायरेक्ट एक्शन? डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये है कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू इन्फोर्स बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स। यहाँ पे इम्प्लाई क्या कर रहा है कि कोर्सिव मेथड कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं। व्हाट इज कोर्सिव मेथड्स? थोड़े से हार्श मेथड्स जो हैं उनको हम कोर्सिव मेथड्स का नाम
देते हैं। तो क्या होता है डायरेक्ट एक्शन में कि द सेंट्रल बैंक यूजेस अ कोर्सिव मेथड अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक हुज क्रेडिट पॉलिसी डू नॉट कन्फर्म टू द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ने कोई एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया था with the help of these moral suasions and the directives issued earlier। ये डायरेक्टिव्स दिए थे, यहाँ पे मॉरल सुएजन किया था, परसुएजन किया था, रिक्वेस्ट की थी। तो मॉरल सेंट्रल बैंक ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना दिए थे एज टू दी कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अगर कोई कमर्शियल बैंक इन मेथड्स को एडहर नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, कुल मिला के अगर हम जिस्ट में बात करें, अगर सेंट्रल बैंक की बात नहीं मान रहा है कोई कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक टेक्स अ डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक। और यहाँ पे किस तरह से डायरेक्ट एक्शन होगा? डायरेक्ट रिफ्यूजल हो सकता है कि हम आपको लोन नहीं देंगे। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक में रिफ्यूज टू सैंक्शन फर्दर फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू द बैंक एंड along with that the central bank may start charging penal rate of interest on the money borrowed। या तो कमर्शियल बैंक को मना कर दिया जाएगा साफ साफ कि हम आपको आज के बाद लोन नहीं देंगे, या फर्दर आपकी नीड्स को लोन की पूरी नहीं करेंगे, या दूसरे से अगर हम 10% दूसरे कमर्शियल बैंक से अगर चार्ज कर रहे हैं तो हम आपसे 15% चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से डायरेक्ट एक्शन कमर्शियल बैंक्स से के ऊपर लिया जाता है बाय सेंट्रल बैंक। दिस इज द कोर्जन मेथड। जब 2 बार समझा दिया गया डायरेक्टिव्स के जरिए, मॉरल सुएजन के जरिए परसुएट कर दिया गया और तब भी बात नहीं मानी जाती है, तो कमर्शियल बैंक को मना करने के लिए, पेनल्टी के लिए या एक सख्त रवैया अपनाने के लिए सेंट्रल बैंक डायरेक्ट एक्शन लेने पे मजबूर हो जाता है। तो यहाँ तक हमारे सारे सेलेक्टिव और जनरल मेथड्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। इस सीरीज़ को ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, देन यू आर फ्री टू ask us, and please subscribe our channel and like our channel and our videos. Thank you for watching. Stay safe and stay blessed.